B. So D is not a party to original firm. He is an outsider. So that person is known as sub-partner. Question may arise in your mind, कि sir, why we should give 5% to D? There is a possibility that D would be bringing business to our firm, and he is known to Mr. B. In that case, we can say he is a sub-partner. But this type of sharing is only possible with the consent of all partners. I hope it is clear and you are not confused between B and D. Or next time we will plan that we will take some good names. Say for example, again I would like to repeat in order to avoid confusion. Say there are two partners, Amit and Gopal, 50-50% sharing, and Gopal decided that out of my 50%, 5% I will give to Krishna. In that case, Krishna is outsider. He is sub-partner. A sub-partner is one who shares the profit of another partner. Sometimes a firm agrees to share his own share of profit with an outsider, and such an outsider, underline dear friends, such an outsider is called sub-partner. The example which I have quoted is written: A and B are partner in XYZ firm. A agrees to share 5% of his profit to D, who would bring business for firm. So here D is sub-partner. Sixth one, the simple minor partner. जैसे आप सबको पता ही है, the person who has not completed the 18 years is known as minor partner. It may be noted that minor partner can be admitted only for the benefits. Underline dear friends, only for the benefits. Benefits का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कंपनी में लॉस हुआ तो minor will not share the loss, he will take only benefit. तो minor, there is a possibility that institute may ask where is the definition of minor. Minor की definition कहाँ पे है? तो माइनर की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, कंपनीज एक्ट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, तो क्या सर कहाँ पे है? तो इट इज अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875. दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस बट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दैट टाइप ऑफ एमसीक्यू वाज अवेलेबल इन द मॉड्यूल्स. सो 18 years एज और बिलो द एज ऑफ 18 is known as minor. The seventh one and the last, partner by estoppel or holding out partner. I would insist if you can remember section 28. This is very strange type of partner. Reading very first line, a holding out partner is the one who represent himself to be partner in a firm, but in reality he is not a partner. यानी क्या हुआ, कोई ऐसा बता रहा है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं लेकिन सच में वो पार्टनर नहीं है, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग आउट पार्टनर्स. तो इट इज वेरी क्लमजी टू अंडरस्टैंड. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर क्लैरिफिकेशन. अगेन विल गो विद सेम एग्जांपल कि समझो अमित और गोपाल फर्म में पार्टनर है. अमित बोल रहा है टू क्रेडिटर्स आर देयर इन ए मीटिंग, सम गेट टुगेदर इज देयर. अमित सेज टू वन क्रेडिटर मिस्टर जेड कि ये देखो, ये हमारे खास पार्टनर है जिसका नाम है महेश. बट इन रियलिटी महेश इज नॉट ए पार्टनर. तो भी इंट्रोडक्शन उसी तरह से करा है कि सी महेश इज अवर पार्टनर टू क्रेडिटर. बट महेश ऑल्सो डिड नॉट रिप्लाइड. महेश ने भी तुरंत मना नहीं किया कि नहीं ये मजाक कर रहे हैं, मैं पार्टनर नहीं हूं. सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन. सो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, पार्टी वाज ओवर. वो क्रेडिटर ने महेश को 2 लाख रुपए के गुड्स दे दिए ऑन क्रेडिट, एज्यूमिंग दैट ही इज ए पार्टनर इन ए फर्म. नाउ महेश इज नॉट पेइंग बैक. महेश पैसे वापस नहीं दे रहा है. ही वॉन्ट्स टू फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म कि भाई ही इज योर पार्टनर, यू आर लायबल टू पे. ओवर हियर वी कैन नॉट टेक ए स्टैंड दैट महेश इज नॉट ए पार्टनर. महेश भी ऐसा स्टैंड नहीं ले सकता कि वो तो मजाक कर रहे थे, मैं पार्टनर था ही नहीं, आई विल नॉट पे टू यू. सो ओवर हियर crux lies over here. Either you are partner or not. But once you have been introduced by whatsoever, by act of partner, as a partner, and later on you cannot deny that you are not a partner. You are supposed to compensate. Let us understand by the example given in our note. A and B are partner in partnership firm. A introduced K, a businessman, as a partner to Q, who is a trader. K remains silent. Underline dear friend, this is important. K remains silent. अगर वो वहां पे तुरंत ही बोल देता कि नहीं भाई ये मजाक कर रहे हैं या they are not serious, I am not partner, but over here he remains silent. So Q, a trader, will believe that K is a partner and supplied goods of rupees 80,000 on credit. क्रेडिट 15 दिन की दी थी, 15 दिन खत्म हो गए. आफ्टर एक्सपायरी asked for money Q,
but Q didn't receive money. So Q want to file a case against K and the original partner A also. Question is whether K is liable to pay. Yes, he is liable to pay. Even though on paper वो partner नहीं था, but we can say that it is like an oral contract. You have accepted the goods you are supposed to compensate. After completing the types of partner, let us start with the next important and interesting topic, that is minor's position in partnership. We have understood before some time that minor partner is the person who has not completed 18 years. Now, as per Indian Contract Act 1872, which is again in our syllabus, it says that any agreement with minor is void ab initio. I would like to say, you circle that word dear friends, void ab initio means from the beginning. कोई भी 18 साल से छोटे बच्चों के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया, that is considered to be the void ab initio from the beginning. He is incapable to enter into a contract and not capable. However, पार्टनरशिप में ऐसा बोला है कि अगर माइनर पार्टनर है तो चलेगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा लिखा है नहीं चलेगा. So obviously there was a conflict previously, but that has been resolved by this section 30. यहाँ पे बोला है कि minor partner can be taken, but only for the purpose of benefits. Means he will share the profit, not the loss. But on third point you should underline, a new partnership cannot be formed with minor partners. इसका मतलब ये हुआ कि 5 बच्चे जो 18 साल से कम है, 10 years, 12 years, 15 years, 14 years, सब इकट्ठे होकर बोलते हैं चलो एक पार्टनरशिप बनाए, then they can't make a partnership. For partnership there has to be 2 competent person. Means एक माइनर और एक मेजर बन के भी पार्टनरशिप नहीं होगी, 5 माइनर इकट्ठे होके भी नहीं होगी, 2 मेजर हो और एक माइनर है तो बात अलग, then partnership is possible. What is the position of minor before attaining majority? Rights. I would like to say that, please circle that word dear friends, before attaining majority. मतलब हम वो पढ़ रहे हैं जब वो 18 साल से छोटा है. Rights. Minor partner has right to share the property and profits of the firm in agreed proportion. Means whatever percentage is there, 10%, 5%, उस proportion में वो share करेगा. Second, he has right to access, inspect, copy the accounts of firm but not books. Circle dear friends, not books. अब apparently ये लाइन पढ़ोगे you will feel कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आया. आप कॉपी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अकाउंट्स, लेकिन बुक्स नहीं दे सकते. मीन्स इफ यू डोंट नो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अकाउंट्स एंड व्हाट इज बुक्स, तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा. से अकाउंट्स आर कंसीडर्ड एज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक्स. अकाउंट्स में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. वहां से आपको पता चलेगा कि दिस मच वॉज टोटल सेल, दिस मच वॉज जीपी. वो माइनर को अलाउड है, लेकिन बुक्स अलाउड नहीं है. बुक्स इन द सेंस सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज बुक, ये सब अलाउ नहीं है माइनर को, बिकॉज दे माइट नॉट हैव आइडिया एंड दे विल लीक देयर मेजर क्लाइंट्स टू समवन एल्स और टू द कॉम्पिटिटर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैश बॉक्स की सब डिटेल उन्हें पता हो तो वो बातों में किसी को बोल दे, एंड देयर आर पॉसिबिलिटी दैट थेफ्ट और समथिंग कैन हैपन. सो माइनर्स आर नॉट अलाउड टू लुक एट द बुक्स, बट दे आर अलाउड टू लुक एट व्हाट, ओनली द एक्सट्रैक्ट, दैट इज अकाउंट. यानी अगर उसे लगे कि मेरा 10% है तो जीपी कितना, तो आप उसको ट्रेडिंग बताओ, आप उसको नेट प्रॉफिट बताओ, एंड यू विल गेट आइडिया कि दिस इज टोटल नेट प्रॉफिट, उसमें से 10% तुम्हारा. ही कैन नॉट आस्क यू डियर फ्रेंड्स दैट हमने पिछले साल में कितना सेल्स किया और हर एक कस्टमर का नाम मुझे देखना है. दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज ही इज स्टिल अ माइनर. एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हेन ही इज नॉट गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, he has right to file a suit against firm. अगर उसे अपने हिस्से के पैसे नहीं मिले, then he can go to the court of law for justice and he will get his share. Liabilities क्या होगी माइनर की? A liability of minor is up to the extent of the share in profits and property of the firm. And the second line is most important, he is personally not liable nor his private property. Personally तो कभी बच्चे कोई भी जिसके लिए लायबल नहीं होते, क्योंकि भारत का कानून बोलता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, सो वो कभी गलती कर ही नहीं सकते. सो इन दैट केस यू आर नेवर लायबल इफ यू आर अ माइनर, नाइदर योर प्रॉपर्टी इज लायबल. बट डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी. हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की. When we go to Indian Contract Act, you need to connect it. वहां पे ऐसा लिखा है कि if you have provided something which is necessities, in that case you can take from his property
नॉट पर्सनली, बट उसकी प्रॉपर्टी में से आप पैसे ले सकते हो. नेसेसिटी इज अगेन ए बिग टर्म, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर माइनर्स को आपने जरूरत की चीज दी है तो उसके पैसे आप मांग सकते हो. बट डेट इज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट अबाउट पार्टनरशिप एक्ट. लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दूसरी एक्ट में थोड़ी सी अलग बात कही है, बट इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज नॉट फाइटिंग, बोथ एक्ट्स आर डिफरेंट. सो दैट इज पॉइंट नंबर बी. नाउ इंटरेस्टिंग पोर्शन, पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. सर्कल दैट वर्ड नाउ डियर फ्रेंड्स, आफ्टर. पहले हमने बात की जब वो छोटा बच्चा था, मीन्स लेस देन 18 ईयर्स. अब बात कर रहे हैं जब ही हैज बिकम मैन, मीन्स मोर देन 18 इन लीगल टर्म्स. ऑन अटेनिंग मेजोरिटी माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड, उसे फैसला लेना पड़ेगा कि आइदर ही नीड टू कंटिन्यू और लीव द पार्टनरशिप. और वो फैसले की घड़ी के लिए उसे मिलते हैं 6 महीने, मीन्स विद इन 6 मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग विच एवर इज लेटर. इन दोनों में से जो भी लेट है वहां से उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे कंटिन्यू करना कि नहीं. विच एवर इज लेटर में हम क्या कंपेयर करेंगे? फर्स्ट वन फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, मीन जब वो 18 साल का हुआ, और फ्रॉम द डेट व्हेन ही फर्स्ट कम्स टू नो दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. इन दोनों में से जो लेट है वहां से 6 महीने उसे मिलेंगे टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट. He may give public notice within 6 month period about his decision. Again public notice as we have discussed कि वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दीजिए. जैसे गुजरात समाचार इन गुजरात इज अ वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर. इन राजस्थान पत्रिका इज ए न्यूज़पेपर. इन मुंबई देयर आर मेनी न्यूज़पेपर, बट वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दैनिक भास्कर. सो दे आर वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर. उसमें आप ऐड दीजिए whether he has elected to become partner or not. But very interesting point, underline, if he fails to do so, अगर वो public notice देना भूल गया, it is deemed to have become a partner after the expiry of above period. इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिलते हैं 6 महीने फैसला करने के लिए, you want to continue or not. अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है, you need to give an public notice. मगर अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी तो इट विल बी एज्यूम्ड, ये मान लिया जाएगा कि यू वांट टू कंटिन्यू विद द फर्म, बाय डिफॉल्ट यू विल बिकम पार्टनर. नाउ राइट्स एंड लायबिलिटीज वेयर ही बिकम्स पार्टनर, अंडरलाइन, वो पार्टनर हो गया तो क्या परिस्थितियां होगी? हिज राइट एंड लायबिलिटी विल बी सिमिलर टू मेजर पार्टनर, क्योंकि अब वो भी मेजर हो चुका है. He will be personally liable for the acts of the firm from the date, underline, he is admitted, since he was admitted to the benefits of firm. पहले से जिस दिन से वो ज्वाइन हुआ से वहां से उसकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी. लाइक ए मेजर, बिकॉज एज आई सेड नाउ ही इज ऑल्सो ए मेजर. एंड द लास्ट वन, हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फर्म विल रिमेन सेम एज ए बिफोर इन सेम प्रोपोर्शन अनलेस एंड अंटिल इट इज चेंज. राइट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर ही डिसाइड, सर्कल इट डियर फ्रेंड्स, नॉट टू बिकम ए पार्टनर. उसने 6 महीने में ये डिसीजन लिया कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, यानी उसने पेपर में ऐड कर दी कि अब 2 महीने बाद, मीन्स ही वॉज हैविंग ए गैप ऑफ 6 months. आफ्टर 2 months he decided he don't want to continue as a partner. Then what will be the scenario? Then following points are there. His rights and liabilities continue to be those of a minor, underline, up to the date of giving public notice. यानी जिस दिन उसने न्यूज़पेपर में ऐड दी तब तक उसकी लायबिलिटी वैसी ही रहेगी जब वो माइनर था. मीन्स कोई लायबिलिटी रहेगी नहीं, बिकॉज पर्सनली इज नॉट लायबल, हिज प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट व्हाट ही इज गेटिंग. सेकेंड, हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर द एनी ऑफ द एक्ट्स डन, अंडरलाइन, आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस. उसने नोटिस दी, उसके बाद अगर कुछ भी हुआ फर्म में उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है. एंड सी, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू sue the partner. Sue means to file a case for his share in property and profits. अगर उसे उसके हिस्से के पैसे नहीं मिले, then he can always file a case against the rest of partner to get his share back. It may be noted that minor shall give notice to registrar that he has or has not become a partner. रजिस्ट्रार को बोलने की तो बारी तब आएगी मेरे दोस्त जब your firm is registered. तो after some times we will discuss about is partnership firm registration compulsory. तो उस सवाल का जवाब आएगा 10-15 मिनट के बाद. तो लेट अस राइट नाउ अंडरस्टैंड कि इफ योर फर्म इज रजिस्टर्ड तो आपको रजिस्ट्रार को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. इफ फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड देन नॉट रिक्वायर्ड. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, हु कैन बिकम ए पार्टनर इन फर्म. कौन पार्टनर बन सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज.
ए पर्सन इफ कॉम्पिटेंट मीन्स कोई भी 18 साल से ज्यादा, अनसाउंड माइंड जो नहीं है मीन्स जिसके पास साउंड माइंड है, मानसिक संतुलन जिसका सही है, ही कैन बिकम ए पार्टनर. ही कैन बिकम ए पार्टनर इन एनी नंबर ऑफ फॉर्म्स डियर. नॉट नेसेसरी कि अगर आप ए फॉर्म में पार्टनर है तो बी में नहीं हो सकते, आपकी कोई भी फॉर्म में पार्टनर बन सकते हो. सेकेंड, अंडरलाइन कीजिए, माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर. लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि ही कैन बिकम ए पार्टनर फॉर बेनिफिट्स, दैट इज अगेन देयर. कंपनी और कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम ए पार्टनर विद पार्टनरशिप फर्म. कोई कंपनी को अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है तो पॉसिबल है. फोर्थ को स्टार कीजिए, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अनदर फर्म. दो फर्म एक दूसरे के पार्टनर नहीं बन सकते. फिफ्थ वन, एचयूएफ कांट बिकम ए पार्टनर, क्योंकि एचयूएफ हमने पढ़ा इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉ और पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. हाँ, लेकिन जो एचयूएफ में सबसे एल्डेस्ट मेंबर है कर्ता, ही कैन बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म इन इंडिविजुअल कैपेसिटी बट नॉट एज एचयूएफ. ट्रस्ट कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, क्योंकि ट्रस्ट का इंटेंशन कुछ और होता है एंड इट इज कवर्ड बाय सेपरेट एक्ट. एंड फॉरेनर और एनआरआई पार्टनर बन सकते हैं, तो आंसर है हाँ बन सकते हैं. अगर वो इंडिया में आके कोई भी पार्टनरशिप फर्म के साथ 10%, 20% or whatsoever ratio they want to become partner, it is allowed. So over here, dear friends, first unit ends. Thank you.